Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast, episode number 12. And this podcast is going to be a fun one where we are going to talk about mainly two things, which is the Euros review, which is part 2, which is always going on. And we have to specifically talk about one team, and that team I think Paul will going to share about the topic. And also there's a huge transfer news which have occurred during the past week. Why come they always say for a tournament they're always the favorites, right? उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है. हैरी केन को देखा है. हैरी केन पीछे खड़ा है. वो भाग रहा है, ट्रेडमिल में भाग रहा है. हैरी केन तो सेंटर सर्कल पे नंबर 6 वाली पोजीशन पे. तो इसलिए मतलब Chelsea. Police has rejected Chelsea and Chelsea have been strictly rejected by Olise that I don't come. Especially Anthony Gordon could have come. I don't know how that left. I mean, it's left. पूरे अटैक में सिर्फ एक बंदे के पास स्पेस है, वो एंथनी गॉर्डन के पास है और उसने अभी तक खेला ही नहीं है. I mean, it was so shocked. Lazy narrative of media. That कि दो तीन जो मीडिया के पास पॉइंट्स है ना लेजी नैरेटिव में कि साउथगेट अच्छा नहीं है. That's why the team is not doing well. तो वो तो पता है. Everyone knows that कि साउथगेट अच्छा नहीं है. एक करना पड़ेगा. मे बी दीज गाइज आर लाइक किड्स, राइट? उनको थप्पड़ मार बोल भोसड़ी की कि अच्छे से बॉल ले, अच्छे से बॉल कंट्रोल. मे बी पेप गार्डियोला तो वही कर रहा है ना भाई. पेप गार्डियोला एकदम से वो जमीन खिसक गई वैसा पैरों के नीचे से एकदम से वो एकदम से फील होता है वैसा. ये खतरनाक मेटाफर लिया है भाई तूने. नो इट फील्स लाइक कि मोदी जी की 240 सीट आई वैसा. मोदी जी 400 पार 240 सीट आई. मतलब ऐसा लगता है कि फ्लॉयड मेवेदर को किसी ने ना फर्स्ट टाइम नॉकआउट कर दिया. He looks out of place. He doesn't have the energy also to press. Often when he's pressing, I think he's the only guy who's pressing. Maybe वो Southgate का जो focus on Euros. तेरे टट्टा के बाद में वो तेरे टट्टा के पास ही गया वो हैरी केन ने दिखा दिया अपना. Only say please come to Germany. I will teach you German language. And I know it's not for me, but it's for someone else sitting on the other side. I think it's a quite shocking one, and also for him personally, I think it's quite a disheartening one. So I'm not going to say more than that. So Paul, what are you going to say about this, bro? So I want to go with you step by step. I know you are angry on some things, but first go get through the show, right? What is the first topic which you're going to discuss? So let's talk about Euros first because it's the main thing going around right now. So apart from some transfer news that has happened recently, so the transfer news we will going to talk about is Olise snubbing Chelsea. Olise has rejected Chelsea and Chelsea have been strictly rejected by Olise that I don't want to come to you. I want to play for a Champions League club, that is Bayern Munich, under Vincent Kompany with Eric Dyer and Harry Kane. But let's first focus on Euros. तेरे टट्टा के बाद में वो तेरे टट्टा के पास ही गया वो हैरी केन ने दिखा दिया अपना. Only say please come to Germany. I will teach you German language. Because उसको मेरे को लग रहा है कि 2 ही शब्द आता होगा. भाई बनता है ना उसका क्या नाम है उसका डैरन फ्लावर करके बनता है ना. वो बहुत तगड़ा मिमिक्री करता है लोगों की. हाँ इसका एग्जैक्ट नाम मेरे को डैरन फ्लावर ही है, पता नहीं. वो लिवरपूल फैन है, उसे याद नहीं आ रहा मेरे को. बंदा थोड़ा वो स्काई स्पोर्ट्स में भी आ चुका है. वो सही मिमिक यस ऑब्वियसली ऐसे करके हार गया. So let's talk about England first. इंग्लैंड क्या कर रही है इस टूर्नामेंट में. So Dinesh, I want to get your viewpoint first because you were bullish on many of the players. You were bullish on Saka, you were bullish on Rice, you were bullish on Bellingham specifically. उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स फोर्डन पे हमने बात करी थी. हमने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड के साथ ऐसा होने ही वाला है क्योंकि जब तक यू कांट कंट्रोल द मिडफील्ड, यू कांट कंट्रोल द गेम्स. मिडफील्ड ही तुम्हारा इंजन है हर चीज के लिए. मतलब ऐसा वो सेइंग है ना कि मैचेस आर वन इन एंड लॉस्ट इन मिडफील्ड बेसिकली. तो जब तक मिडफील्ड अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ सही नहीं हो सकता. बट फर्स्ट लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट इंग्लैंड. So as a team I never liked England. वो तो मैंने तेरे को
मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी पता है और अपने व्यूअर्स को भी पता है कि वी वर नेवर सपोर्टिंग इंग्लैंड इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि हमें फंडामेंटली जो कोच है वो अच्छा नहीं लगता है और उनका प्ले स्टाइल्स अच्छा नहीं लगता है, एंड द वे दे ऑलवेज गेट दीज इजी ग्रुप्स वो भी अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से ये सबसे बड़ा तो ये चीज़ है कि why come they always say for a tournament they're always the favorites, right? उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है लिटरली मीनिंगफुली। एक वुमेन्स टीम जीती है यूरोस, उसके अलावा ये जो टीम है एक वर्ल्ड कप के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं जीता है, लिटरली दे हैव नॉट वॉन एनीथिंग, and that too before our fathers were born. yeah, that exactly. And it was like prehistoric, and no one ever remembers that particular match. Okay, maybe for England history, maybe they would remember because that's the only thing which has happened. But how come they are the favorites? They have not shown anything. They have just been in some finals because they were privileged, and also in the semi-finals because they were privileged to get the easiest of bunch. They faced Croatia. In this, they lost. One decent team they faced, they lost, and one decent team. I don't think consider Italy even a decent team. Semi-decent team, they were not able to dominate, and even in their own home ground. So इसलिए मेरे को इंग्लैंड टीम कभी अच्छा नहीं लगा. बट आई टेक माई वर्ड्स बैक. मैंने काफ़ी चीज़ें बोली थी कि जूड बेलिंगम की बहुत अच्छा खेलेगा, राइट, और साका अच्छा खेलेगा. जो मेरे हिसाब से ऐसा लगा था कि ये मतलब भले ही इनका टीम का कुछ जेल ना हो पाए, बट देर विल बी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस विच वुड टेक इंग्लैंड टीम अक्रॉस, यही मेरे को लगा था. और उसमें स्पेशली मैंने बोला था कि राइस अच्छा खेलेगा, जूड बेलिंगम अच्छा खेलेगा और साका खेलेगा, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा मैंने उनको पहले देख रखा था ऑब्वियसली, राइट. आई टेक माई वर्ड्स बैक. दीज गाइज वेर शिटी, राइट. आई मीन साका शिटी से थोड़ा ऊपर था, मतलब ही वॉज ऑल्सो शिट, बट आई वोंट कंसिडर हिम शिटी बिकॉज लिटरली हैरी केन, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था. वो जब भी क्रॉस देने को जा रहा था, हैरी केन वॉज इमूवेबल. मतलब ना उसको अभी चाहिए कि एक जगह उसको रहना है, मतलब हेडर मारने के लिए. साका क्रॉस दे लिया आता है, हैरी केन को देखता है, हैरी केन पीछे खड़ा है, वो भाग रहा है, ट्रेडमिल में भाग रहा है. हैरी केन तो सेंटर सर्कल पे नंबर 6 वाली पोजीशन पे. तो इसलिए मतलब इट वाज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल हाउ दे प्ले. एंड जूड बेलिंगम, जो मेरा फर्स्ट मैच का जो उसने गोल था, मैंने उसको मतलब पाल ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि ही लॉस्ट मेनी बॉल्स की उसने, बट मेरे की ये था कि पूरा इंग्लैंड टीम उस दिन छुट्टी था, तो उसमें एक शाइनिंग थोड़ा बहुत जो बंदा ने शाइन किया वो बेलिंगम था, कि ही इम्पोज्ड हिमसेल्फ इन अ गेम वेयर एवरीवन वर सो शिटी, राइट. सो इसलिए मैंने जूड बेलिंगम को बोला. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द टू मैचेस आई थिंक he looks out of place. He doesn't have the energy also to press. Often when he is pressing, I think he's the only guy who's pressing. Maybe वो साउथगेट का जो मतलब अगर तुम देखोगे ना, मैंने जो देखा है उनका लाइन हमेशा बहुत पीछे रहता है. अगर तू देखा तो इवन स्लोवेनिया के जो फर्स्ट हाफ में उनका लाइन तो उनके डी में था. स्लोवेनिया यार, ये उसमें इशू उसमें ये है क्योंकि है ना उनकी जो चारों डिफेंडर्स है वो आगे जाते ही नहीं है ना. जो सेंटर बैक है वो वहीं रहते हैं. स्टोन्स को अलाउड नहीं है कि वो इन्वर्ट कर जाए मिडफील्ड में, जैसे वो गार्डियोला के लिए करता है, वो करता नहीं है. प्लस तुम्हारा जो राइट बैक है काइल वॉकर, वो भी आगे नहीं जाता. काइल वॉकर को तो पता नहीं क्या हो गया ब्रो. ही हैज बीन टर्न्ड इनटू लाइक, क्या होता है काइल वॉकर को यार. काइल वॉकर को क्या हो गया है. मतलब उसके बाद ट्रिपियर भी बेकार ही है ऑलमोस्ट. मेरे हिसाब से उन्होंने पिच में कुछ कर दिया क्या. उसके पास पेस है, वो पेस दिखा रहा है, बट उसके बाद जो फाइनल चीज़ है वो कर नहीं पा रहा है यार. वो पता नहीं क्यों, मतलब मे बी इंग्लैंड उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ रखा है क्या. मतलब गैरेथ साउथगेट उनको कुछ बोल ही नहीं रहा है क्या जब गलत कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं. भाई इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव वॉन 4 times द प्रीमियर लीग एंड यू हैव टू ओन योर सेल्फ. ऐसे वो बोल रहा है क्या कि मतलब कुछ तो कोच को करना पड़ेगा. मे बी दीज गाइज आर लाइक किड्स, राइट. उनको थप्पड़ मार, बोल भोसड़ी की कि अच्छे से बॉल ले, अच्छे से बॉल कंट्रोल. मे बी पेप गार्डियोला तो वही कर रहा है ना भाई. पेप गार्डियोला को क्या फर्क पड़ रहा है वो काइल वॉकर है या जॉन स्टोन्स हो. अगर वो उस बंदे ने फर्स्ट टच खराब किया है, वो बंदे को बुलाएगा, सुनाएगा, फिर भेजेगा. बट साउथगेट, आई डोंट थिंक सो साउथगेट इज डूइंग दैट मच. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड जूड बेलिंगम टू गेट सब्स्टिट्यूटेड for maybe for the last 2 games, not for the first game, for the last 2 games. Maybe other players could have come, like I think Cole Palmer could have come, especially Anthony Gordon could have come. I don't know how that left, I mean it's left. पूरे अटैक में सिर्फ एक बंदे के पास स्पेस है, वो एंथोनी गॉर्डन के पास है, और उसने अभी तक खेला ही नहीं है. I mean it was so shocking.
तो मतलब आई टेक माई वर्ड्स बैक पाल, मतलब एज एन इंग्लैंड टीम मेरे को तो बहुत शिटी मेरे को हमेशा लगा, बट आई टेक माई वर्ड्स बैक इन सेइंग दैट दीज गाइज आर नॉट performed up to the level. But I'm not saying they don't have the capability or they don't have the smartness to or the I mean what do you say, क्या बोलते हैं उसको, clutch point time, जैसे clutch game होता है ना जो लास्ट में 3 पॉइंट डालना है, वो इनके पास नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, but I don't know, they're having the worst of the games. I think they have to quickly forget and then move on. So Yeah. this is my So take. let's move from the lazy narrative of media. दैट कि दो तीन जो मीडिया के पास पॉइंट्स है ना लेजी नैरेटिव में कि साउथगेट अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई द टीम इज नॉट डूइंग वेल। तो वो तो पता है, एवरीवन नोज दैट कि साउथगेट अच्छा नहीं है। एक नहीं 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 भाई, ये क्या कर गया तू यार, ये तो बहुत गंदा कर गया तू। नहीं मेरे को लगा तू कुछ मतलब बोलेगा, ऐसे लग रहा है तू मतलब नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये तो सबको पता है कि साउथगेट गंदा है, तो मतलब वो कॉमन फैक्टर है तो उसको हटा दिया तूने। नहीं ऐसे तो नहीं, लेट्स पर उसको मूव भी अवे, एक फैक्टर है भाई। लेट्स वो फैक्टर है पर लेट्स मूव अवे फ्रॉम दैट डिस्कशन। इंग्लैंड वो 6 8 साल से गंदा है, जब से उसने 2016 में आया है। वो ऐसा नहीं कि अभी आके खराब हो गया, वो 8 साल से खराब है। तो 8 साल से सेम नैरेटिव यूज करना मतलब समवेयर प्लेयर्स हैव टू शो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं भी कुछ हूँ, आई एम द वन। एग्जांपल देता हूँ मैं थोड़ा सा बेल्जियम का, कि है ना रॉबर्टो मार्टिनेज उससे गंदा कोच नहीं है, मेरे को लगता है साउथगेट उससे बेटर है थोड़ा सा फिर भी, क्योंकि ही इज ए मैन मैनेजर आल्सो, मतलब वो टीम को तो खुश रखता है कम से कम। रॉबर्टो मार्टिनेज ऐसा अथॉरिटेटिव नहीं है कि उसको कुछ आता भी नहीं है, पर तो वो अथॉरिटेटिव भी है रॉबर्टो मार्टिनेज। पर साउथगेट कम से कम टीम का माहौल तो अच्छा रखता है कि हाँ भाई सब बढ़िया है ना, सब बढ़िया है, तो वो वाला माहौल तो रखता है वो। तो वो दैट इज ओके, पर प्लेयर्स हैव टू इम्पोज दैट कि बेल्जियम की टीम ने इम्पोज किया है अपने आप को एक दो जगह वैसा जाके, कि जहां पे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैव टेक द बैटन फ्रॉम द मैनेजर कि भाई हमेशा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है कभी ना। समवेयर प्लेयर्स हैव टू टेक onus on their themselves। हैरी केन व्हाट द फक ही इज डूइंग, ही इज मतलब कि उसको भाई मैं अपन ने दिनेश फर्स्ट जो डिस्कशन किया था ना दैट वाज सो परफेक्ट, सो परफेक्ट, कि हैरी केन कांट प्ले इन एज अ स्ट्राइकर व्हेन यू हैव अ नंबर 10। एंड इंग्लैंड के पास तो नंबर 10 ही नंबर 10 है, पेलिकम नंबर 10 है, फोर्डन नंबर 10 है, पाल्मर नंबर 10 है, एजे नंबर 10 है। तो जब तक ये प्लेयर्स है तुम हैरिकेन के साथ नहीं खेल सकते, इधर यू हैव टू ड्रॉप हैरिकेन और यू हैव टू प्ले ड्रॉप दीस थ्री प्लेयर्स ये एंथनी ऐसा। गॉर्डन को खिला सकता है, मतलब जिस हाँ, हिसाब से तेरा और मतलब। हैरिकेन नीड्स पेसी विंगर्स नियर बाय हिम, या कि मतलब वो ड्रॉप डीप करके वो स्प्रे पासेस कर सके, फिर वो विंगर थोड़ी देर बॉल रखेगा, तब तक हैरिकेन धीरे 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 करके पहुंच जाएगा डी तक, और तब वो पास करेगा तो हैरिकेन कुड स्कोर अ गोल वैसा। तो हैरिकेन नहीं खेल सकता है प्लेइंग फोर्डन ऑन द लेफ्ट साइड। फोर्डन को पता है वो इतना उसको क्या करना है कि वो अंदर ही आएगा कटा के, पर उसके बाद वो करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैन सिटी में उसके पास भर भर के ऑप्शन है, यहाँ ड्रीब्रूइन है, यहाँ कोई रन ले रहा है, मतलब पीछे तो है ही लोग देने के लिए। थर्ड चीज की बकाया साका, वो एक डिफ्लेक्टेड उसका जो असिस्ट था दैट इज देयर, उसके बाद बकाया साका ने कुछ नहीं किया पूरे कल। उसने पता है एक बात मेरे को सबसे गंदी जो लगती है ना बकाया से, कि मतलब मेरे को अंदर से वैसा लगता है कि भाई तू इतना बुरा भी नहीं है वैसा उस वे में, कि है ना ही गॉट अ येलो कार्ड, मतलब ही डिडंट गेट अ येलो कार्ड, उसने एक प्लेयर को बुक करवा दिया था कि तो कोई आता, और दैट इज ऑल्सो हाफ टाइम से काफी पहले। ठीक है, प्लेयर जो राइट का लेफ्ट बैक होगा ना वो, उनका जो लेफ्ट बैक वाला बंदा था वो येलो पे था कुछ 22 23 25 मिनट के आसपास से। उसके बाद बकाया साका ने उसको एक बार टेक ऑन नहीं किया कि कम से कम उसके अराउंड भाग तो सही, ही कैन नेवर फाउल यू, उसने फाउल किया तो वो येलो पे है, ही कुड गेट अ रेड कार्ड बकाया साका। वो और तूने आर्सेनल मैचेस में भी नोटिस किया होगा कि बकाया साका येलो कार्ड दिलवा देता है, फिर उसके बाद वो अंदर ही कटाने लग जाता है कि भाई बाहर से भी जाना तू कभी तो। उसके बाद बकाया साका का क्या है सिस्टम प्लेयर को इसलिए वो लगता है कि जब तक उसके पास बेन वाइट है यहाँ पे उसके पास ओवरलैप के लिए, और बेन वाइट अच्छा प्लेयर है ओवरलैपिंग में। उसके बाद अंदर कट करने के लिए उसके पास क्या बोलते हैं ओडेगार्ड है। ओडेगार्ड कम से कम बॉल कीप कर सकता है, क्यूट पासेस खेल सकता है, प्रेस रेजिस्टेंट है। वो यहाँ पे किसको बॉल खेल रहा है अंदर पास करके बेलिंगम को, बेलिंगम ना पास कर सकता है ना वो क्यूट प्ले कर सकता है ना वो प्रेस रेजिस्टेंट है। वहीं पे तुम्हारा बकाया साका गेम खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर आई वांट टू मूव टू डेक्लन राइस। अपन तूने डेक्लन राइस के बारे में नहीं बोला, पर डेक्लन राइस आर्टेटा ने एक डिसीजन लिया था जब से आर्सेनल अच्छा खेलने लग गए, वॉज टू प्ले जॉर्जिनियो एंड राइस टुगेदर। तब से आर्सेनल अच्छा करी है, जब तक राइस पार्टे ने हटा दे, पार्टे पार्टे को जब था तब भी बहुत अच्छा खेल रही थी। हाँ पार्टे इंजर्ड रहा मोस्टली नहीं, वैसे पार्टे भी जब आया फर्स्ट था हाफ ना में, बाद में लास्ट ऑफ द गेम्स में उसने लास्ट बहुत अच्छा लास्ट में। गेम्स। तो पार्टे तो जॉर्जिनियो का अपग्रेडेड वर्जन है ही मतलब पार्टे। मतलब उसने आप राइस को आगे ही खिलाया, मतलब उसने राइस को पीछे नहीं खिलाया। आगे नहीं, मतलब आई एम सेइंग कि पिवट,
राइस का काम जो डिफेंस वाला है ना, जो कांटे करता है, वो काम है, पर राइस स्लोअर देन कांटे। हाँ और कांटे के पास जो टर्न है और जो थोड़ा सा प्रेस रेजिस्टेंट है कांटे, और कांटे आगे भाग भी सकता है, कांटे को तुम फाउल नहीं कर सकते वैसा करके, कांटे तुम्हें मार के भाग जाएगा, उसने बहुत वैसा किया है। तो राइस के पास वो स्किल नहीं है, मतलब इधर नहीं है और इधर अभी तक डेवलप नहीं है। अभी तक डेवलप नहीं है तो आने के भी चांसेस अभी तो मुश्किल ही है वैसे भी। तो राइस वो नहीं कर सकता। राइस राइस वो क्लीन अप पूरा अच्छे से कर देगा, कि अच्छे से कोई भी आ रहा है कि ही विल ट्रैक द रनर्स, है ना, ही विल मेक टैकल्स। पर तुम इससे बोलो कि बैक फोर से तुम पास रिसीव करो और उसके बाद तुम पास स्प्रे करो आगे, राइस कांट डू दैट। या उसने एक पास किया था बकायो साको को पूरे मैच में, और वही चांस बना थोड़ा बहुत जाके बकायो साको का। वो देखा तुम्हें वो क्या बोलते हैं, ट्रेंड जो पासेस करता है वो ऊपर से साका के, वो तो नहीं कर वो सकता, वो उसने कभी वो किया भी नहीं है, ही इज नॉट हाँ नोन फॉर वही दोस पासेस। वही तो ही कांट पार्टी डू दैट। पार्टी करता है। पार्टी करता है। तो बायन वाले मैच में तेरे को याद है जिसमें साका पेनल्टी लिया था, वो जो हम्म पेनल्टी नहीं दी थी, हम्म वो ऊपर से पास किसने खेला था? पार्टी पार्टी ने नहीं खेला खेला। था। पार्टी आया था। तो राइस अकेला सिक्स नहीं खेल सकता है, यू नीड टू हैव समवन हु हैज फुटबॉल इंटेलिजेंस, हु इज गुड ऑन द बॉल, वैसा। तो उसके अलावा और प्लेयर में बाकी जाते हैं, पर उसके अलावा दीज प्लेयर्स हैव बीन डूइंग एंड लेट्स टॉक अबाउट बेलिंगम लास्ट, उसके बाद करते हैं बेलिंगम के बारे में बात। और उसके अलावा कॉनर गैलेगर के बारे में तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है ब्रो, कि मतलब ही प्लेड फॉर 45 मिनट्स, वी न्यू दैट कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, ही कांट कंट्रोल द बॉल। कोई मैनों को आने के बाद देखा ना तुमने वो कितना अच्छा उसने नहीं किया। एक्चुअली वो को मेरे हिसाब से वो एक्चुअली डू फैक्टर है, वो तो मैं तेरे को मैंने बताया भी था पहले शायद, कि वो लाइन साउथगेट ने बोल दिया भाई डिफेंसिव लाइन तुम्हें आगे करना पड़ेगा पहले, तो ये उसने बोल हाँ दिया, तो इसलिए कोबी माइनो के थोड़ा सा, क्योंकि यार स्लोवेनिया का रैंक क्या है भाई, वो टॉप 100 में है या टॉप 50 में तो नहीं होंगे ना शायद। 57th रैंक है उनकी। 57, देख टॉप 50 में नहीं है, एंड दे वर गेटिंग डोमिनेटेड बाय देयर मिडफील्ड भाई, कुछ ब्रो स्लोवेनिया वर पॉपिंग देम ऑफ। एग्जैक्टली exactly. यहाँ से वहां पासेस, ये इनसाइड पासेस 1-2 खेल रहे हैं, तो तभी साउथ गेट, मतलब मेरे जो कमेंटेटर्स में सुन रहा था, कमेंटेटर बोल रहा था कि एक साउथ गेट से ये पूछा गया था कि व्हाई आर योर डिफेंसिव लाइन सो बैक, राइट? तो कमेंटेटर बोलता है कि व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट क्वेश्चन, साउथ गेट वाज सेइंग that it was not never our strategy to play the defensive line, it basic we never planned it that way, it happens. So इसलिए तू सेकेंड हाफ में देखेगा गोही कितना आगे था, स्टोन्स कितना आगे था, उसकी वजह से गोही गलती भी कर गया था, देखा तूने? येलो ऑलमोस्ट इट वाज ऑलमोस्ट अ गोल, एंड it, I mean that particularly shows कि how ineffective England players are in outside of the system. English players are completely un मतलब जैसे अनकोच्ड अनकोचेबल हो जाते हैं, जैसे आउटसाइड ऑफ द सिस्टम वो चले जाते हैं ना, तो उनको पसंद नहीं है। जैसे डीप लाइन डिफेंडिंग करेगा तो मार्क गुई बेस्ट है, ठीक है, जॉन स्टोन्स भी बेस्ट है, बट अगर उनको आगे प्रेस करना है, आगे वो करना है, तो मतलब they can't do it because they lack the space, उनको पता नहीं है कि वो हेडिंग एबिलिटी में अच्छा है, दे लैक द ब्रेन। they lack the brains। तो यही हमने सेम सोचा था, याद है कि भाई गो फॉरवर्ड विथ इंग्लैंड, इंग्लैंड को प्रेस करो, इंग्लैंड को तुम आराम से चोट सकते हो जब तुम डिफेंसिव बॉल्स क्रॉस करने लगे तो। एग्जैक्ट, वो भागने लग जाएंगे आगे, और आगे हैरिकेन है ही नहीं। हाँ वो सेंटर में आराम से हेडर मार के और फिर आगे बॉल ले आएंगे। भाई, और ये चीज तूने नोटिस किया है, जो तूने बोला वो बिल्कुल सही है। और दोस्तों, जो अगर तुमने इंग्लैंड के मैचेस देखे जाए तो सैका वाज ड्रिफ्टिंग इनवर्ड्स, बेलिंगम तो अंदर है ही वैसे भी, फोर्डन भी ड्रिफ्ट अंदर कर रहा है भाई, डेक्लन राइस को भी अंदर आना है, मतलब थोड़ा बहुत जो उसको पासेस आगे देना है वो डेक्लन राइस भी आगे आ रहा है, और एक बुढ़ा बेंच वो भी आगे आ रहा है भाई, इतने मिडफील्ड में डेक्लन 5-6 लोग हैं भाई। और कॉनर गैलेगर तो वही है ही। कॉनर गैलेगर तो है ही, उसने जो ट्राई किया, कॉनर गैलेगर ट्राइड समथिंग एंड ही लॉस्ट, मतलब उसने जो भी पास जितने दिए उससे ज्यादा उसने बॉल लूज की है। ब्रो तुम्हारे जो जो पिवट है, दोनों जो बंदे, उन्हें बॉल चाहिए ही नहीं। चाहिए ही ना नहीं। राइस को बॉल चाहिए ना हाँ कॉनर गैलेगर को बॉल। दे वर हाइडिंग कि कॉनर गैलेगर आगे भाग जाता कि मेरे को नहीं चाहिए बॉल, मेरे को नहीं चाहिए। और राइस उसके बाद गैलेगर को बॉल मिलती तो राइस पता नहीं कितने दो बंदों के पीछे की, मेरे को नहीं चाहिए बॉल, मेरे को नहीं चाहिए, वो बेचारे बैक पास कर रहे हो, फिर सेंटर बैक से प्रेशर आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये इसको लग रहा है ये काफी फिल फोर्डन ने, मतलब डिक्लन राइस ने काफी फिल फोर्डन को आगे पास दिए, तो उसको लगा फिल फोर्डन को कि उसने बैक पिवट लेके या कुछ भी मतलब अंदर पास खेलना है तो हैरी केन होल्ड करेगा, नहीं कर सकता भाई वो बंदा, क्यों करेगा? वो फ्लिक मार रहा है, हैरी केन तो अंदर है, तेरे से भी वो आगे है, उसको कैसे बॉल पीछे चले जा रही है, सो देयर वर लूजिंग पोजीशन लाइक एनीथिंग, राइट? एंड आल्सो साका वाज स्ट्रिक्टली कमिंग इनवर्ड्स,
जब वहां पे पहले से बेलिंगम है, पहले से हैरी हैरी केन को भी मतलब उसको स्ट्राइकर पोजीशन में नहीं रहना है, उसको भी सेम बेलिंगम, तुमने देखना हैरी केन और बेलिंगम दोनों साथ में रहते हैं और फिल फोर्डन भी पीछे रहता है, मतलब कभी भी ये तीनों ऐसे ये स्प्रेड नहीं करते हैं ये प्ले को। चारों वही है ब्रो, हाँ ये चारों वही है। ये चारों वो डी लाइन पे ही है। डी एग्जैक्टली। लाइन के भी सेंटर पे है, साका अंदर आ जाता है, फोर्डन अंदर आ जाता है, बेलिंगम तो ये है ही, और हैरी केन को पीछे आना ही है। या चारों के चारों कन्वर्ज कर रहे हैं ब्रो, लाइक ए स्वास्तिक। एग्जैक्टली। और जब भी इनको कुछ ना कुछ चांस बनाया, दैट वाज व्हेन काइल वॉकर ओवरलैप्ड समथिंग, हाँ, बट पता नहीं वो मैन सिटी में मिनट पे और वो मिनट ही वो ओवरलैप्स। भाई कितना मैन सिटी में कितना ओवरलैप करता है भाई वो बंदा, मिनट पे मिनट ओवरलैप करता है। मारेस जब तब तो मतलब ही वाज ऑलमोस्ट इज लाइक ही वाज प्लेइंग लाइक अ विंगर, उसके बाद जब ये बर्नार्डो सिल्वा था तो ओवरलैप तो कर ही रहा था, डे ब्रुयन का एक पास तो हमेशा काइल वॉकर के पास जाता था। बट ये इंग्लैंड में मतलब 3-4 ओवरलैप मैक्स टू मैक्स, यही है उसका कैपेबिलिटी। मतलब ये मेरे हिसाब से साउथगेट बोल रहा है क्या मत कर भाई ओवरलैप, क्योंकि कॉर्नर गैलगर चूतिया, हमारा मिडफील्ड चूतिया है कि कोई ट्रैक बैक नहीं करेगा, इसलिए मेरे को ये बहुत मेरे को फनी लगा कि इतना बंदा ओवरलैप करने वाला बंदा जो ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। आई थिंक मे बी दैट इज, एंड ऑल्सो I think favoritism also has come into picture again, right? Why has he not substituted Jude Bellingham? I think he could have substituted हैरी Jude केन। हैरी केन, मतलब हैरी केन को सेकंड मैच में सब्स्टिट्यूट किया था ना, मे बी पता नहीं क्यों उसने सब्स्टिट्यूट किया था, बट ही ट्राइड सम स्टोट, बट ऑली वॉटकिंस आते ही कुछ ना कुछ किया व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम हैरी केन। आई थिंक ही शुड हैव प्लेड। आइवन टोनी ने क्या बुरा किया है ब्रो? हाँ इवन टोनी वो भी मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाट ही मतलब इज थिंकिंग। मतलब इसके बल्कि वो इस टाइम हैरी केन का थोड़ा एजाइल वर्जन ही है या आइवन टोनी, क्योंकि वही वो भी वही करता है जो हैरी केन करता है ऑलमोस्ट, मतलब विद अ लेसर डिग्री। एग्जैक्टली। एंड प्लेइंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, भाई वो बंदे आते ही उसका फर्स्ट पास देगा ऑलमोस्ट अ गोल। बाप रे यार ये बंदे कितना कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनका क्या, इनको मतलब घबरा जाते हैं क्या इनको वर्ल्ड से। भाई यू आर प्लेइंग स्लोवेनिया, इट्स नॉट आल्सो लूटन टाउन भी नहीं है वो यू आर प्लेइंग सम टीयर बी और फुटबॉल, उनको दे मुंबई सिटी एफसी है वो। हाँ एग्जैक्टली exactly, उनका जो प्राइमरी काम ही फुटबॉल नहीं है, उनका प्राइमरी काम कुछ और है। दे डोंट वांट टू प्ले फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज द नेशन हैज कॉल्ड देम। तो हाँ। उस और इतना गंदा ग्रुप भाई जैसे जैसे यूएस वो खेलती है ना क्रिकेट, कि वो टेक ब्रोस आके कैलिफोर्निया बे से मतलब आके क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, वैसा वैसा है स्लोवेनिया के प्लेयर्स ब्रो। वो भी होगा कोई कारपेंटर, कोई बेकर, कोई टेकर, कोई कोडर। Exactly. I mean, even I think even Slovenia could have dominated, but उनके पास exactly जो हमने बोला था, उनके पास energy levels उतने नहीं है, इसलिए second half obviously इंग्लैंड ने step in एंड आगे किया। एंड दे न्यू की ड्रॉ वुड बी एनफ फॉर देम टू क्वालिफाई। हाँ exactly, उनको देखा celebration देखा as if they won the World Cup, but it's true, but for that nation भाई इतना छोटा सा देश है और इतना unprivileged है वो लोग, and they have been qualified for जो the round of 16। इंडिया अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होगी, एक गोल मार जाएगी, हम वो कपड़े फाड़ देंगे वो भाई स्क्रीन पे, वैसा। why do you want to do this, why do you want to take another level above bro, पहले I just want them to get qualified, उसके लिए हम पागल ना हो जाए क्या, उसके लिए मैं नहीं, जो वो तो पागल है ही। मैं बोल हाँ रहा हूँ कि गलती से अगर कहीं पहुंच गया और उसके बाद एक गोल मार दिया कैसे भी किसी ने भी, वो हम कितने पागल हो जाएंगे ब्रो। exactly। हाँ। So I mean, they wanted a point against England, right? And they got it, and it is written in the history books now. And they हाँ। have also qualified. I think either they're going to play, I think Portugal. Probably they're going to play Portugal. I think it's between A, B, and C. So between three teams. So Croatia तो है बाहर. So we will talk about Croatia as well. That's a good topic. वन मोर लेजी नैरेटिव ऑफ मीडिया आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम, कि वो सब बोल रहे हैं कि है ना, फोर्डन लेफ्ट पे काम नहीं कर रहा, तो फोर्डन को नंबर 10 खिलाओ Hmm. एंड ब्रिंग बेलिंगम बैक। Hmm. तुमने एक भी बंदा बता दो, तुमने बेलिंगम को खेलते हुए देखा है क्या कभी भी पिवट में? Hmm. अगर तुमने डोटमंड में उसको नहीं देखा, अगर डोटमंड में भी वो आगे खेलता था मोस्टली, एक भी बंदा बता दो उसने नंबर 8 या तुमने उसको नंबर 6 के बीच में पिवट में उसको खेलते हुए देखा है क्या किसी ने भी कभी? नोबडी हैज सीन दैट। सब असम्पशन लगा रहे हैं भाई कि वो अच्छा खेल लेगा, अच्छा खेल लेगा, क्यों? उसका नाम है। एट्रीब्यूट्स तो देखो उसके यार, मतलब उस अगर तुम उस मिडफील्ड का डबल का एट्रीब्यूट तो देखो, कि मतलब दे कैन वर्क। राइस एंड बेलिंगम विल नेवर वर्क। आई एम सेइंग कि राइस एंड बेलिंगम विल नेवर एवर नेवर वर्क। Hmm. इसके साथ बंदा चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, जिसके पास फुटबॉलिंग ब्रेन और प्योर फुटबॉलिंग ब्रेन, ना कि एथलेटिसिज्म। एथलीट है बेलिंगम, एथलीट है, ही वन द जेनेरिक लॉटरी, जो वो जेनेरिक नहीं, वो जीन लॉटरी उसके पास आ गया ब्रो, कि मतलब एथलीट है वो, अच्छा है, परफेक्ट वो मॉडर्न प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है वो, इस जमाने का, वैसा इस एरा का।
ये 6'3" हाइट, क्या बोलते हैं, स्पीड अच्छा है, अजाइल है थोड़ा, दैट इज ओके। पर उसके पास दिमाग, वो फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं है कि क्रूस मॉडरेट जॉर्जिनियो जो राइस खेलता है, जिसके साथ खेलता है जॉर्जिनियो के साथ वैसा। तो उसमें तुम्हारा कुछ काम ही कर ही नहीं सकता है वो। राइस कभी भी बॉल लेके तुम्हें दे ही नहीं सकता है कि वो आगे खिला देगा, क्योंकि ही विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टिव, कि उसकी गांठ फटती रहती है कि वो पीछे से कोई आ ना जाए, ही इज नॉट स्टैंडिंग बैक। बेलिंगम को तुम बॉल देना चाहते हो, इतना पीछे से ट्रैम्पोलिन जैसा टच है, वो 3 टच के बाद तो वो मार देता है ब्रो किसी को, या खुद गिर जाता है। तूने देखा, एक भी बता दे उसे 4 कदम उसने लगातार अगर बॉल के साथ ले लिया ना, अमेज, क्योंकि पहला टच उसका लेता है वो दूर, फिर उसको वो दौड़ के भागने जाता है, फिर उसके बाद तीसरा टच में जाके वो फाउल कर ही देता है सामने वाले बंदे को। उसने प्रो, मैं बस इतना बता रहा हूँ, एक भी जगह उसने कहीं गाइल दिखाया क्या बेलिंगम ने? पूरे गोल को हटा दे, इट वॉज अ ब्रिलियंट गोल, इट वॉज अ ब्रेव गोल, ठीक है, पर इन 3 मैचों में उसने एक भी जगह गाइल दिखाया क्या कि दो बंदे उसके साथ, 2 बंदे उसको प्रेस कर रहे हैं और वो प्रेस रेजिस्टेंट होकर निकल गया, या फिर उसने मतलब एक बैक पास दे दिया, या फिर बैक हील पास दे दिया, या कोई क्यूट सा कुछ भी करा उसने? उसने कुछ भी नहीं करा, मतलब, क्योंकि ही कांट प्ले एज ए पार्टनर टू राइस, बिकॉज ही विल नेवर रिसीव द बॉल फ्रॉम सेंटर बैक्स। उसके बाद उसके पास वो प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, उसके बाद वो ड्रिबलर नहीं है कि वो कटा के निकल जाएगा। ही कैन कैरी द बॉल इफ देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेसेस, दैट्स ऑल ही कैन डू। मतलब मैं मतलब आई एम नॉट से डिफेंडिंग दिस बिकॉज आई थिंक सबने देखा ही होगा उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बट मैं ये नहीं, उसको बस तेरे से इतना बोलना चाहता हूँ कि फोकस ऑन हिज एट्रीब्यूट्स आल्सो। आई मीन मैं वही बता रहा हूँ यार, ये जो मेरे को ऐसा, ये जो टीम ऐसा लग रहा है कि ये टीम इज वेरी, मतलब टीम केमिस्ट्री में अगर तू जाएगा ये टीम केमिस्ट्री 20s 30s में है। तो मतलब तू अगर फीफा में जब अगर तुम लोग टीम सेटअप कर रहे हो, तो इफ यू सेट अप दिस टीम इज बेसिकली लैकिंग दैट टीम केमिस्ट्री। सोच इंग्लिश टीम में, ये इंग्लिश है, दे आर नॉट प्लेइंग इन अ ब्रो, क्लब। ब्रो ट्रेंट का दूसरा टच इज अ टैकल, या आई हिज मीन सेकंड टच इज ऑलवेज अ टैकल। वो कैसे हो सकता है? भाई इतना वियर्ड वो बंदा आता ही, इतना उसने मतलब फ्रेजिलिटी दिखाया। 5 मिनट में उसने ऐसे दिखा दिया कि मैं, मेरा आते ही कुछ ना कुछ हो सकता है दूसरी टीम को। मतलब इट वाज, आई मीन ये सब हमें पता है, राइट, ये सब हमें पता है, बट आई मीन साउथगेट मतलब इतना परफेक्ट टैलेंट पूल है भाई, इतना परफेक्ट टैलेंट पूल है, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक देम जेल टुगेदर। और Because he doesn't have the balls to drop Foden, to drop Bellingham, to drop Kane. yeah, yeah, and and one more thing importantly, Pal, I think this was a hot topic, right? Harry Kane का जो interview था याद है? तो हाँ, बोल बोल उसमें अच्छे से मतलब बोल। so just a bit of context, guys. So there was a question asked during the post. I think it was preview of this match. I think preview before the Slovenia match, as being the England captain, he was asked by a reporter that there was many talks by the ex-players and also by the football pundits on criticizing the England team, राइट? ऐसे करके उसने एक कॉमन जनरल क्वेश्चन पूछा था कि ये फुटबॉलिंग नैरेटिव क्या है, जैसे हम लोग मैं और पाल भी बात कर रहे हैं, वी आल्सो क्रिटिसाइजिंग द इंग्लिश टीम, राइट? तो उसने पूछा कि स्पेशली फ्रॉम, उसने फोकस किया एक्स प्लेयर्स के और पंडित्स पे उसने फोकस करके उसने पूछा। हैरी केन ने काफी खतरनाक डिसमिसिव आंसर दिया है, एंड आई वाज शॉक्ड। जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था तब भी मैं शॉक था, और उसके बाद जो रिएक्शन आया था उसके लिए तो वो काफी एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, बट वो काफी अच्छा रिएक्शन भी था। उसने एकदम से अपने पूरे एक्स प्लेयर्स की गांड मार दिया एक स्टेटमेंट में, कि उनको भी उसने बताया, ये बोला, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उसने ये बोला कि भाई एक्स प्लेयर्स थे बट वो भी तो हारे, उन्होंने भी जीता क्या है? वही तो सीधा है, मतलब गांव की लैंग्वेज में, भाई तुमने कौन सा कुछ उखाड़ लिया? तुमने हाँ, एग्जैक्टली तुमने क्या उखाड़ लिया? हाँ, मैंने सटल वे में बताया, जो पाल ने बताया वो, तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने झाट उखाड़ा है, तुमने थोड़ी झूठा है। और ऊपर से पता है नीचे मतलब ये जब हो रहा था रिएक्शंस में, मैं कमेंट्स देख रहा था, उसमें ऐसे तो है कि भाई तू भी इंग्लैंड में नहीं है, वुमेन इंग्लिश टीम भी है। वो तो कुछ ना कुछ जीती है, तू कुछ नहीं जीता है। तो मतलब इट वाज सच अ, मतलब बहुत काफी क्रिटिसाइजिंग मतलब कमेंट था। मतलब उसको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब पाल, तेरे हिसाब से क्या लग रहा है? मतलब तू ये बोल कि फर्स्ट तो हम लोग बोल रहे हैं कि तू रिएक्ट कर, फिर उसके बाद हम लोग ट्विटर के मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया वो बोल रहे हैं। तू कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडिया कभी क्रिटिसाइज करती ही नहीं इंग्लिश प्लेयर्स को। हम्म। गैरी लिनेकर ने बस इतना सा बोला था कि दे वर नॉट गुड, हम्म। कि दे वर नॉट गुड, ये क्रिटिसिज्म है क्या?
भाई तुम बाकी कंट्रीज में जाके देखो फिर वो क्या पेलते हैं अपने प्लेयर्स को। मैड्रिड वाले फैंस को देखो कि मैड्रिड की टीम को क्या वो बू करते हैं। वैसा फैंस मैड्रिड, वो स्पेनिश मीडिया को देखो, इस मार्का वगैरह जो है वो क्या पेलते हैं स्पेन को अच्छे से, है ना। अभी फ्रेंच फ्रेंच जो मीडिया है वो फ्रांस को पेल रहा है वो अच्छे से अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंग्लिश मीडिया जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो क्रिटिसाइज करता ही नहीं है। दे आर लैपिंग अप इंग्लैंड, कि हमेशा दे आर लैपिंग अप इंग्लैंड, दे आर लैपिंग अप गैरेथ साउथगेट। सेकंड चीज कि जब वो तुम्हारा हल्का सा तुम्हें क्रिटिसिज्म मिल गया हैरी केन, कि भाई तूने जिंदगी में आज तक उखाड़ा क्या है जो यू कैन कम बैक एंड से टू दिस प्लेयर्स। उसने बोला कि तुमने भी कुछ नहीं उखाड़ा है, बट वो प्लेयर्स ने अपनी जिंदगी में इंग्लैंड के साथ के अलावा बाकी सब जीता है। जो कोल ने सब कुछ जीत लिया है अपनी जिंदगी में। जो कोल वाज ए विनर, ठीक है। उसके बाद गैरी लिनेकर प्लेड फॉर बार्सिलोना एंड ही वाज अ विनर। क्या बोलते हैं ये इसका टकला कौन है ब्रो, वो जेमी कैरेगर भी जीत चुका है। जेमी कैरेगर भी चैंपियंस लीग जीत चैंपियंस चुका है। लीग गैरी नेवल के पास 11 लीग टाइटल्स और दो दो उसके पास चैंपियंस लीग है। उसके अलावा ये एलन शेरर के पास एक टाइटल है, वो भी ब्लैकबर्न से, ठीक है ऐसा। भाई हैरी केन, व्हाट हैव यू वन इन योर लाइफ? डेक्लन राइस, व्हाट हैव यू वन इन योर लाइफ? जो बचाने आ रहे थे, वो फोर्डन तो नहीं आया बचाने, क्योंकि ही नोस कि क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, है ना। जो सब कुछ जीता है। ट्रेंड भी थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि ट्रेंड का मिलता है कि ट्रेंड छोड़ो, उसकी बात करवाने का तो लेकिन बात 1 आउट ऑफ 4 याद है उससे, वो बंदा वही से वो चुप हो गया, उसने कुछ बोलता ही नहीं है। और वैसे भी इज स्काउसर, उसकी तो कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। तो जो इंग्लैंड में जो विनर्स है ना, वो कोई नहीं आया। जो ये लूजर मेंटेलिटी वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो जिन्होंने कुछ जीता नहीं है लाइफ में, दे रिस्पॉन्ड बैक टू द क्रिटिसिज्म। रोनाल्डो ने भाई कब क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड किया अपनी लाइफ में? वो हमेशा उसने मैच पे वो किया, और उसके बाद उसने सेलिब्रेशन दिया काम आ, ठीक है, कि भाई अब तुम चुप हो जाओ। वो उसके अलावा वो ये वाला भी जो रोनाल्डो करता है ना कई बार, कि जो क्राउड को चुप करा के, वैसा यू हैव टू डू दैट। और उसके बाद तुमने जो परफॉर्मेंस दिया ब्रो, मतलब मतलब उसके बाद है ना, वो 2 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो और तुम्हारे पास वो नहीं है कि हाँ हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे हैं, यू कांट क्रिटिसाइज। डेक्लन राइस बोलने आ रहा था, व्हाई कांट यू कॉल साका बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, व्हाई कांट यू कॉल जूड बेलिंगम बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, यू शुड गिव देम कॉन्फिडेंस ऑफ दैट दे आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट देयर पोजीशन। देख लिया भाई हमने, कोई बेस्ट प्लेयर नहीं है कहीं भी भाई किसी वैसे भी पोजीशन का। नहीं, वैसे भी वो तो बता ही रहे हैं कि साका इज वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द इंग्लिश मीडिया तो लैप कर ही रहा है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ वही तो, उसके बाद तुम ये परफॉर्मेंस देते हो। और पाल तूने जो एक तो ये तो हम पाल का रिएक्शन है और मेरा रिएक्शन भी हमने बता दिया है। एंड वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्मॉल रिएक्शन व्हाट हैपेंड आफ्टर, राइट आफ्टर द ट्विटर मीडिया। आई थिंक वाज अ वेरी फनी ट्वीट फ्रॉम पॉल मर्सन। पॉल वो कि मतलब हैरी केन को उसने काफी उसने टैग किया हैरी केन को और बोला कि भाई फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे शॉट्स एंड टारगेट लिए तुमने and you were the best team. एंड यू आर द बेस्ट टीम। और सेकंड हाफ में भी उन्होंने काफी प्रेज किया, मतलब उसने ऐसे ऐसे सटल वे में काफी रिएक्शंस जो लिए। वो तो सबसे बड़ा जो मैच के बाद जो रिएक्शन आया वो आर्सेनल फैंस का आया ब्रो, बिकॉज इयन राइट हैव गेव चेल्सी फैंस, क्या बोलते हैं वो, इन्फिनिटी स्टोन्स। वो होता है ना एमो, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो भी तुम बोल लो। इयन राइट ने चेल्सी फैंस को वो दे दिया कि ही सजेस्टेड कि साका शुड प्ले लेफ्ट बैक एंड कोल पार्कर शुड कम इन द राइट विंग, वैसा। तो उसके बाद जो आर्सेनल फैंस का रिएक्शन आया है, दे कैंसल्ड इयन राइट। उसके बाद उन्होंने कर दिया कि भाई तू नहीं आएगा अब से आर्सेनल में, तेरे सारे शर्ट लॉन्च है, सब खत्म है तेरे। दे कार्ड इयन राइट रेसिस्ट ब्रो। नहीं नहीं एक्चुअली वो एक वो होता है ना, वो एज ए इंग्लिश वो बंदा इयन राइट सोच रहा है, बट एज एन आर्सेनल फैन वो लोग मतलब काफी वो सब्जेक्टिव नहीं रहते हैं। वो एक्चुअली वो ट्विटर मीडिया एक्चुअली ही वाज थिंकिंग द बेस्ट फॉर द टीम। वो इंटरेक्शन तभी मिलते हैं ना भाई, वो इंटरेक्शन तभी बनते हैं। जैसे वो मतलब काफी लोगों का ट्वीट आता है, बहुत लोगों का ट्वीट आता है, जैसे मैन यूनाइटेड बोलेगा कि कोबी माइनो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो मतलब ये लोग कभी सब्जेक्टिवली नहीं सोच सकते, और ये मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए नहीं सोच सकते। दे आर लाइक दे वांट देयर ओन क्लब guys to do much more than what they I think इससे स्पेनिश मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्पेनिश जो मीडिया है, स्पेनिश जो क्लब्स हैं, वो लोग एक्चुअली दे सॉर्ट ऑफ ओके डैनी कार्वाल अच्छा खेला, बारसा फैन बोल सकता है, राइट? मतलब बट नाउ इन ट्विटर देयर इज अ स्पेस ऑफ ब्रो पीपल। स्पेनिश टीम तभी
सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी जब है ना रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में ना तगड़ी राइवलरी थी उस टाइम, मरीनियो टाइम्स में 2008 2012। हाँ, काफी मतलब काफी लड़ाई भी हुआ था हाँ, अभी से वो भी। उसने फेंक दिया था उसे, वो रामोस ने। सेस फैब्रिकास ने बोला था इंटरव्यू में कि काफी हाँ रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना रियल रिफ्ट पैदा हुआ था जब हाँ स्पेन खेल रही थी, बट आई मीन दैट वाज मे बी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इवन इन द लीग एंड दे वेर, मतलब उनका ऐसा प्ले स्टाइल उसने जेल हुआ था कि वही एवरीवन अडेप्टिंग की बंदे यहाँ पे वो फिट है तो मतलब बाकी लोग भी वो अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो इंग्लैंड में जो हो ही नहीं पा रहा है, जो बिल्कुल ट्रेंट अलेक्जेंडर बोल रहा है मैं क्लॉप की तरह खेलूंगा, साका बोल रहा है मैं आर्टेटा की तरह खेलूंगा, डेक्लन बोल रहा है मैं आर्टेटा की तरह खेलूंगा, फिल फोरन बोल रहा है मैं पेप की तरह खेलूंगा, हैरी केन बोल रहा है मैं सुट्टा मारूंगा, तो मतलब कोई जेल ही नहीं हो रहा है ना, मतलब इस हिसाब से मतलब उनको कुछ है ही नहीं, मतलब काइल वॉकर को तो खेलने में मन ही नहीं है, जॉन स्टोन्स को भी मेरे को मेरे हिसाब से खेलने का मन नहीं है, एक ही बंदा सारा काम कर रहा है वो मार्क हुई है, जो भी उसको टैकल करना है वो कर रहा है, हेडर जीत रहा है, मार्क स्टोन जॉन स्टोन्स तो आजकल मतलब ही इज नॉट इवन गोइंग टू यू नो क्रॉसिंग दी हाफ लाइन अक्रॉस and maybe playing key passes which he was playing even when he was playing for England. I think he was playing beautiful passes जब सेंटर बैक से actually he was like a थोड़ा बहुत वो अच्छे से खेल रहा था, बट अभी उसके पास भी भरोसा नहीं है क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ द एनर्जी थिंग और मे बी द फिटनेस लेवल आई थिंक, बट ऑल इन ऑल पाल साउथ गेट का जो टीम सिलेक्शन है एंड हाउ ही यू नो उसने जो लास्ट में उसने जो लेफ्ट बैक्स को उसने जो लूक शॉ को उसने लिया अंदर और उसने काफी मतलब अरे कम से कम चिलवेल को तो हिला लेता भाई ये हाँ भाई, चिलवेल टट्टी है, चिलवेल पर लुइस हॉल, लेना तो चाहिए, हाँ लेना तो चाहिए उसे। लुइस एग्जैक्टली हॉल तो ब्रो ही इज एक्सेप्शनल प्लेयर, उसको तो कभी मिलेगा भी नहीं। मतलब भाई ये कैसे उसने मतलब ये कितना, हाँ भाई मेरी इस बात पता है, ये मार्कस रैशफोर्ड को भी उसको हटाना नहीं चाहिए था ब्रो, सीरियसली मार्कस रैशफोर्ड को, मतलब वो ऐसा बंदा है मार्कस रैशफोर्ड छोटी टीम को वो चोदने वाला बंदा है हमेशा मार्कस रैशफोर्ड, उसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिला दोगे ना और उसको स्पेस दिला दोगे जो है राइट विंग सॉरी लेफ्ट विंग में जो है भर भर के लेफ्ट विंग में स्पेस है, वो बंदा ड्रिबल करके कुछ ना कुछ कर सकता है, मतलब वी डोंट वांट टू डू हिम टू स्कोर गेम्स एवरीवेयर बट ही द स्टेट ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड टीम इज दे एटलीस्ट हैव टू डू यू हैव ऑप्शंस, या एटलीस्ट यू हैव you have ऑप्शंस। options to create a different sort of a dynamic, अभी वो पर है ब्रो, एंथनी गॉर्डन पर में। वो गॉर्डन को चलो मार्कस रैशफोर्ड को नहीं लिया, वो गॉर्डन को लेके गया, उसकी जगह मान लिया, पर चांस तो दे उसको भाई। एग्जैक्टली और ये अभी नहीं दिया है, स्लोवेनिया के अगेंस्ट दिया तो किसके अगेंस्ट देगा ब्रो, अभी नेक्स्ट मैच तो तुम्हारा नेदरलैंड्स है मेरे हिसाब से इंग्लैंड का, हाँ तो कहाँ से घंटा तुमको करोगे हाँ, नेदरलैंड्स के आई थिंक अगेंस्ट, नेदरलैंड्स कैन फक देम इजीली। नेदरलैंड्स के, बट दे आर आल्सो गेटिंग फक्ड, सो इट्स अ दे आर स्टिल ब्यूटीफुल परफेक्ट सेगवे पाल, सो गेटिंग फक्ड से याद आया भाई चेल्सी के साथ जो जोखा हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज इट वाज अ फनी फॉर मी एंड दिस वाज अ वेरी वियर्ड ट्रांसफर कि ओलीसे क्यों गया बायर्न म्यूनिख पे, and I don't know what he's going to do there. Maybe he's going to be an elite player, but ultimately I हु don't केयर्स। think he will. Yeah, who cares? And also ultimately, English media is going to he's going to be almost irrelevant in the English media because you know how they treat Musiala, right? So that's how he's going to be get treated as well. And also Vincent Company, I think I don't know what he's going trying to prove there. Maybe it's his signing, and he wants to focus everything on him and create an identity around it. Maybe, probably. So, Pal, what is your take apart from Chelsea getting fucked, bro? ब्रो मतलब ऐसा होता है ना कि योर प्रिज्म ब्रेक्स एकदम से, कि और सडनली योर मतलब वॉट एवर यू बिलीव इन, कि एकदम से वो जमीन खिसक गई वैसा पैरों के नीचे से, एकदम से वो एकदम से फील होता है वैसा। वाओ, ये खतरनाक मेटाफर लिया है भाई तूने। ओ नो नो, इट फील्स लाइक कि मोदी जी की 240 सीट आई वैसा, मोदी जी 400 पार 240 सीट आई, मतलब ऐसा लगता है कि फ्लॉयड मेवेदर को किसी ने ना फर्स्ट टाइम नॉकआउट कर दिया वैसा। ऐसा कभी कभी जैसा होता है ना कि एक बॉक्सर बिल्कुल ही इनविंसिबल है एक तरीके से, और सडनली एक बंदा उसको आके नॉकआउट कर दे, मतलब फर्स्ट राउंड में वैसा, तो इट फील्स लाइक दैट वैसा सडनली थोड़ा थोड़ा, कि उसकी वैसा। तो याद है कि वो इन्फिनिटी वॉर की जो फर्स्ट मूवी थी, उसमें आयरन मैन ने, जब आयरन मैन और थैनोस की लड़ाई चल रही थी वो उनके प्लेनेट पे, तो आयरन मैन ने फर्स्ट टाइम है ना एक वो थैनोस को उसके पैर को दबा के उसके मुंह पे घुसा मारा था कुछ अलग से पावर आके, तो थैनोस का ना खून निकल गया था वैसा। तो इट फील्स लाइक दैट कि मतलब वो थैनोस कैन ब्लीड, तब जाके उन्हें थोड़ा वो हो गया था। तो मेरे को आज पहली बार ऐसा कुछ रियलाइज हुआ कि ब्रो इन ट्रांसफर मार्केट चेल्सी कैन लूज टू,
Chelsea can bleed too. मतलब it's not like कि मैं ओलिसे के जाने से इतना दुखी हूँ क्योंकि we are getting next year Kendry Paez who comes out to be one of the top talents in कौन सी टीम कोलंबिया में ही है ना शायद नहीं उसके साथ है वो इसका अपना काइसेडो के साथ है काइसेडो कौन सी इक्वाडोर है ना उसके अलावा वी आर गेटिंग एस्टिवाओ नेक्स्ट ईयर कि जिसको नेमार ने भी बोल दिया कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग आउट ऑफ ब्राजील वैसे करके सो वी हैव एनफ लेफ्ट विंगर राइट विंगर्स लेफ्ट फुटेड राइट विंगर्स वी हैव एंजेलो हु इज ऑन द मतलब लोन पे स्टाउट्सबर्ग के तो इट्स नॉट लाइक वी वांट नीड दैट कि ऐसा में दुख नहीं है जाने का एक जस्ट द सिल्वर लाइन ये है कि ही डिडंट जॉइन इंग्लिश क्लब ऐसा कि अगर वो ये इंग्लिश क्लब ज्वाइन कर लेता तब बहुत दुख होता बिकॉज ब्रदर फॉर मी ना कि ओलिसे इज द बेस्ट ऑफ द लॉट कि ओलिसे मेरे हिसाब से जस्ट ऑन द उसने प्रूव किया है नहीं किया वो नहीं बोल रहा मैं जस्ट ऑन द शेयर एबिलिटी जस्ट ऑन द शेयर टैलेंट कि उसके पास जो एट्रीब्यूट्स है कि ही इज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट ऑफ लाइक साका पाल्मर फोर्डन और जेरड बोअर और probably include Salah now current Salah not the Salah of old current Salah मतलब जो भी लेफ्ट फुटेड राइट विंगर की जो तुम बात कर रहे हो कि आई थॉट ही वाज आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ द लॉट उसके पास पासिंग है ही कैन थ्रेड एंड पास थ्रू ए नीडल उसके पास ड्रिबलिंग है देखा था उसे कैसे मेरे को कैसा पेला था और निकल गया था उसके पास शूटिंग है वो डेड बॉल स्पेशलिस्ट भी है ना और वो अंदर भी कटा सकता है और वो बाहर भी कटा सकता है ही कैन गो आउटसाइड आल्सो ऑफ अ प्लेयर मतलब ही इज अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ प्लेयर मतलब ओलिस अगर आ जाता तो आई वुड हैव बीन वेरी 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 हैप्पी पर वो नहीं आया दैट्स ओके पर अब चेल्सी को हाउ शुड दे मूव ऑन फर्स्ट थिंग दे शुड डू कि मतलब चेल्सी फैंस का थोड़ा दिल हल्का करने के लिए फर्स्ट थिंग दे शुड डू टू ईज अप द पेन इज टू सेल स्टर्लिंग है ना अब जाके स्टर्लिंग को बेच के थोड़ा दुख हल्का हो सकता है ब्रो वरना सीरियसली इट्स मतलब चेल्सी कभी हार ही नहीं है ब्रो ट्रांसफर मार्केट में टू फाइट विद द अदर टीम कि चेल्सी के पास प्लेयर्स आए हर जगह से उन्होंने पेड्रो को विलियन विलियन पेड्रो था मिकेल था उसको उन्होंने यूनाइटेड से छीना आर्सेनल से उन्होंने बहुत प्लेयर छीने वो उन्होंने तो कोल वो एशले कोल को लिया था उसके अलावा भी आर्सेनल चेल्सी किसी प्लेयर की रेस में है तो चेल्सी हैव वन द रेस पिछले साल लिवरपूल हैड टेस्टेड दिस कि मतलब लाविया काइसेडो कोई नहीं गया लिवरपूल चेल्सी के पास आया उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी से वी आर नॉट कम्पीटिंग लेट देम हार्ट पर उसके अलावा चेल्सी हारती नहीं है ब्रो मतलब इट्स लाइक कि मतलब हो जाता है ना कि तुम्हारा एक जो कॉन्फिडेंस था वो यहाँ पे आ गया वैसे चेल्सी का ट्रांसफर मार्केट में आई थॉट चेल्सी वर इनविंसिबल चेल्सी हार सकती है ट्रांसफर रेसेस में अभी एंड दैट टू फ्रॉम बायर्न म्यूनिख yeah, I mean, एग्जैक्टली अभी लीला सोने को तो गया जगह ना स्पॉट तो गया हमें वो पता नहीं वो मतलब मैं कंपनी का जो आते ही पहले बता मेरे को ये बंदा टीम में चाहिए ही नहीं इसको बेचो या मतलब ये बंदा कितना अट्रैक्टिव प्लेयर है मेरे को चाहिए ही नहीं ये वंस अपॉन अ टाइम वाज अ वेरी गुड प्लेयर इन मैन सिटी एंड आफ्टरवर्ड्स ही नेवर शोड हिज ट्रू पोटेंशियल आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक ओलिसे जैसे पाल ने बताया आई थिंक ही इज एन एक्साइटिंग प्लेयर फॉर मी एज वेल एबिलिटी वाइज उसके पास अच्छा है एज इफ उसने प्रूव कुछ नहीं किया है आई थिंक कंपनी में भी अच्छे से ग्रूम करके वो कुछ करेगा मे बी ही रिटर्न्स बैक एज अ वेरी ग्रेट प्लेयर लाइक हाउ Jamal Musiala is becoming right so maybe we will give this time so I think Pal this concludes our episode do you want to conclude by saying anything or how has it been for you I know it's been heartbreaking so Euros में at least हमारा जो पोर्चुगल टीम है वो तो काफ़ी हम लोग ग्रुप विनर्स हो गए and we will be you know वो एक तो है कि we will be dealt with one of the toughest draws right वही दिक्कत है फ्रांस को हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में स्पेन जर्मनी और समवन राउंड ऑफ 16 राउंड ऑफ 16 में तो स्लोवेनिया है शायद राउंड ऑफ 16 में ग्रुप विनर्स है ना तो इसलिए हम लोग के पास एक इजी चांस है आई थिंक बेल्जियम जो उनका जो लास्ट वाला है वो आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले विद समवन एल्स जो अभी जो खेलने वाले मैचेस हैं बट एज इन ऑल आई थिंक यूरोज apart from the first two games and for a technically good teams I think rest of the games for me it's been boring वो अब तो हो गया ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा एक्साइटिंग था कि कुछ किसे कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है तो स्टार्टिंग में से पीपल ट्राई टू विन द मैचेस वैसा मतलब टीम्स ट्राई टू विन द मैचेस पर अभी क्या हो गया है कि दे नो कि ड्रॉ से भी काम चल जाएगा वी जस्ट हैव टू निक अप 1-0 एंड समहाउ क्योंकि 24 में से सिर्फ 8 ही टीमें तो बाहर होंगी एग्जैक्टली ऐसा 16 तो रहेगी ना या
इट्स प्रीटी मच इट्स अ वेस्ट ऑफ अ फॉर्मेट भी है, बहुत गंदा फॉर्मेट है। इससे अच्छा 32 ही ले लो ब्रो। 32 ले लो और मतलब चांसेस दो, राइट। मतलब गंदा फॉर्मेट है और काफी मतलब एटलीस्ट नॉर्वे स्वीडन जैसी टीम है तो खेल लेंगे। हाँ एग्जैक्टली। और ऊपर से ये व्हाट अबाउट दी, दे डोंट हैव टू, बेसिकली दे विल हैव टू विन अ सिंगल मैच एंड दैट टू बाय व्हाट ही सेड लाइक 1-0, 1-0 काफी है। तो ये तो है। दिस कंक्लूड्स आवर एपिसोड 12। प्लीज गाइस, thanks for all of your support and thanks for watching, and keep on watching and keep on liking our post, sharing and also subscribing. And this is signing off, Ranga. This is Pal signing off.